یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور عید قیامت المسیح کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آئیے میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب کو کھولیں گے جو کہ نئے عہد نامہ کی نبوت کی کتاب مانی جاتی ہے اور ہے بھی۔ مکاشفہ پہلا باب اس کی 17ویں 18ویں اور 19ویں ان 3 آیات کو ہم تلاوت کریں گے۔ تو 17ویں آیت کو میں پڑھوں گا، 18ویں آیت کو بھائی پڑھیں گے اور پھر 19ویں آیت کو ہم سبھی مل کر پڑھیں گے۔ سبھی نے نکال لیا؟ 17ویں آیت یوں بیان کرتی ہے، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبداللہ آباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ 19ویں آیت کو سبھی مل کر پڑھیں۔ پس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے۔ خداوند خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور سنایا جناب صاحب کے لیے بڑی برکت کا باعث ہو۔ خداوند کا شکر۔ سبھی کہیں آمین 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 آمین۔ ایک بار کہیں خداوند کا شکر ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئیے بڑی خوشی اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے اور خداوند سب کو برکت دے۔ اور ساتھ ہی مہربانی کر کے تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ جو پیچھے بہن بھائی آ رہے ہیں ان کو آسانی سے بیٹھنے کی جگہ مل سکے۔ سبھی بہن بھائی تھوڑا سا اپنی جگہ سے آگے ہی جائیں، مہربانی ہوگی آپ سب کی۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کا سب کی سلامتی ہو۔ اور ایک بار پھر عید قیامت المسیح سب کو مبارک ہو۔ اور یہ عید میرے اور آپ کے نجات دہندہ منجی خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید ہے۔ یوں تو مسیحیت کی پیدائشی معجزانہ طور پہ ہوئی، اور جس طرح سے مسیحیت کی پیدائش معجزانہ طور پہ ہوئی ہے، اسی طرح ہی مسیحیت کی پرورش جو ہے وہ بھی معجزانہ طور پہ ہو رہی ہے۔ ہاللیلویا۔ میری اور آپ کی روحانی پرورش جو ہے وہ بھی معجزانہ طور پہ ہو رہی ہے، خدا کے فضل سے ہو رہی ہے، خدا کے کلام کے مطابق ہو رہی ہے، اور اس میں روح القدس ہم سب کی بڑی سہایتا کرتا ہے، بڑی مدد کر رہا ہے۔ ہم یسوع مسیح کے فضل کے لیے اور پھر اس کے بہائے گئے لہو کے لیے اور پھر اس کے بڑے نام کے لیے جس کے وسیلہ سے ہم نے ابدی نجات کو حاصل کیا، ہم آسمانی خدا باپ کے فرزند ٹھہرے اور اس کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ اس بڑے فضل کے لیے ہم یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر مرا اور پھر مردوں میں سے زندہ ہو کر یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو راست باز قرار دے دیا۔ آمین۔ یہ بڑا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ، ایسا اہم معجزہ دنیا میں نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہی ہوگا۔ لیکن یسوع کتنے ہیں؟ ایک۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی روح القدس ہے اور ایک ہی یسوع ہے۔ اگر خدا، یسوع اور روح القدس ایک ہے تو پھر ہم سب بھی ایک ہیں، اور دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے، یہ جب یوحنا کو پتمس کے جزیرہ میں ڈال دیا گیا تو وہاں پر بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب ہی بیان کرتی ہے کہ روح جو ہے
वो यूहन्ना को पतमस के जजीरा से उठाकर आसमान पर ले जाता है और वहां पर इस हवाला के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना को अपना तारुफ करवाता है। सुनिएगा, खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना को अपना तारुफ करवाता हुआ नजर आता है। और तारुफ क्या है? पहली बात लिखा है कि जब यूहन्ना ने उसको देखा तो उसके कदमों में मुर्दा सा गिर पड़ा। मुर्दा सा गिर पड़ा। याद रखिए, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह को जान जाए, यीशु मसीह को पहचान जाए, यीशु मसीह को समझ जाए, तो फिर हमें उसकी हजूरी में गिर जाने की जरूरत होती है। यूहन्ना को जब पता चल गया कि ये वाकई खुदावंद यीशु मसीह है, तो लिखा है कि मैं मुर्दा सा उसके कदमों में गिर पड़ा। और जो ही यूहन्ना यीशु के कदमों में गिरता है तो फिर यीशु मसीह अपना तारुफ शुरू कर देता है। जब तक हम खुदावंद की हुजूरी में नहीं आते, खुदावंद की हुजूरी में नहीं बैठते, तो कभी भी हमें यीशु के बारे में पता नहीं चलता। जब हम चर्च नहीं आएंगे, जब हम खुदा का कलाम नहीं पढ़ेंगे, जब हम खुदा का कलाम ही नहीं सुनेंगे, तो हमें क्यों कर किस तरह कैसे जो है वो खुदा के बारे में पता चलेगा? हमें किस तरह से यीशु मसीह के बारे में पता चलेगा? हमें किस तरह से जो है वो यीशु से अपना तारुफ करवाएगा? और यहाँ पर यूहन्ना खुदा की हुजूरी में है और खुदावंद यीशु मसीह अपना तारुफ उसे करवाता है। और सुनिएगा, पहला तारुफ क्या है? वो कहता है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ। यीशु मसीह का पहला तारुफ क्या है यूहन्ना और मेरे और आपके लिए? कि मैं अव्वल और आखिर हूँ। और पुराने अहदनामे के अंदर यशायाह नबी का सीफा, उसका 41वां बाब, उसका 43वां बाब और उसका 44वां बाब और फिर उसका 48वां बाब देखें तो वहां पर यही लक़ब जो है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ, आसमानी खुदा के लिए लिखा गया है कि खुदा अव्वल और आखिर है। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपना तारुफ करवाता हुआ नजर आता है और यूहन्ना से कहता है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका साफ साफ मतलब ये है कि पुराने अहदनामे वाला खुदा नए अहदनामे में यीशु है। हालेलुया। और वो इसलिए कहता है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ। और आगे वो कहते हैं कि मैं जिंदा हूँ। मैं इसका मतलब यह है कि खुदा हमेशा जिंदा है। हय्युल कय्यूम खुदा हमेशा जिंदा और कायम रहता है। और वो कहता है कि मैं जिंदा हूँ और ये उसका माजी का समझे कि हमारी नजर में उसका तारुफ है कि मैं अव्वल और आखिर, यानी कि मैं पुराने अहदनामे का खुदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। और फिर वो अपने 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 दुखों के बारे में कहता है कि देख मैं मर गया था, देख मैं मर गया था, देख मैं मर गया था। कितने ज़माने हैं? 3 ज़माने हैं, एक माजी का, एक हाल का और एक मुस्तकबिल का। जब लफ्ज़ था है तो फिर इसका मतलब है कि वो गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है कि मैं फला दिन था, मैं फला वक्त था, मैं फला मौका घड़ी था। लेकिन जब हूँ का लफ्ज़ आ जाए तो वो हाल को ज़ाहिर करता है। लेकिन वो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि देख मैं मर गया था, मैं मर गया, यानी कि मैं किसी ज़माना में मर गया था, किसी वक्त मर गया था, किसी दौर में मर गया था। जिस तरह के हमने गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह की मसरूफियत के बारे में सीखा, यीशु मसीह की सलीब पर जान करने के बारे में सीखा, हमने यीशु मसीह को गुड फ्राइडे के दिन मरते हुए देखा, सुना, सुनाया, सीखा और सिखाया। और आज के दिन जो है खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो कहता है कि देख मैं मर गया था और फिर कहता है कि मैं जिंदा हूँ। वो कहता है कि मैं मर गया था, मर तो गया था लेकिन अब फिर जिंदा हूँ, लेकिन अब फिर मैं जिंदा हूँ। मर गया था लेकिन अब फिर मैं जिंदा हूँ। और आगे लिखा है कि मैं अब्दुल अबाद जिंदा, हालेलुया, मैं अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। क्योंकि पुराने अहदनामे के अंदर, नए अहदनामे के अंदर, पुराने अहदनामे के अंदर देखिए पहले सलातीन के अंदर वहां पर एलिया नबी ने बहुत बड़ा मौजज़ा किया और उसने सारपत की बेवा को जो के बालियां चुन रही थी, लकड़ियां चुन रही थी और अपने खाने पीने का इंतजाम कर रही थी और कुछ वक्त के लिए अपने लिए खाना तैयार करने के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन
बाद में उसका ज़हन था कि मैं ये रोटी खाऊंगी और मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे, और फिर ऐसा ना हुआ। और उस सारपत की बेवा ने एलिया की खिदमत की और वो दोनों माँ और बेटा जीते रहे, जिंदा रहे। लेकिन एक वक्त आया कि उस सारपत बेवा का बेटा मर गया, सारपत की बेवा का बेटा मर गया। और फिर एलिया को इसके बारे में पता चला और एलिया ने उस बेवा के इकलौते बेटे को जिंदा कर दिया। और वो पहले सलातीन के अंदर आपको मिलेगा, और फिर दूसरे सलातीन के अंदर ये लिखा हुआ है कि एलिया ही का शागिर्द, एलिया ही का जो होनहार शागिर्द था, यानी कि एलीशा नबी, उसने भी मौजज़ा किया और उसने भी एक शूनीली औरत के इकलौते बेटे को जिंदा किया। और पुराने अध्यायों में एलिया और एलीशा ने दोनों उस्ताद शागिर्द ने एक एक मुर्दे को जिंदा किया। और उसके बाद नए अध्यायों में जब आते हैं तो यीशु मसीह ने 3 मुर्दों को जिंदा किया। कितने मुर्दों को? एक यायर की इकलौती बेटी थी, और दूसरा उस नाइन शहर की बेवा का इकलौता बेटा था, और तीसरा इकलौता बड़ा कौन था? लाजर। ये पुराने अध्यायों के भी 2 खास, वो भी अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, और नए अध्यायों में यायर की बेटी भी इकलौती औलाद थी। और फिर जो नाइन शहर की बेवा का बेटा था वो भी इकलौता था। और याद रखिए फिर जब यीशु मसीह ने 3 मुर्दों को जिंदा किया, पुराने अध्यायों में 2 मुर्दों को जिंदा किया, और पुराने अध्यायों के मुर्दों को जिंदा किया जाना ये यीशु मसीह के जिंदा होने को पेश करता हुआ दिखाई देता है। और वहां पर अंबिया इकराम की मार्फत तो खुदा ने मौजूदा तौर पे मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन नए अध्यायों में खुदा खुद इस जमीन पर आ गया और उसने मौजूदा तौर पे मुर्दों को जिंदा करना शुरू कर दिया। ये सब कुछ क्यों था? ये सब कुछ कैसे था? ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता था? इसलिए कि पुराना अहदनामा यीशु मसीह को पेश करता है। पुराने अहदनामा में जो कुछ भी था वो यीशु मसीह का अक्स था, यीशु मसीह की नकल थी, और यीशु मसीह के बारे में पेश किया जा रहा था। लेकिन असल खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर तकरीबन 33 या 33.5 वर्ष की उम्र उन्होंने गुजारी, और फिर खिदमत उन्होंने सिर्फ तकरीबन 3 या 3.5 वर्ष की। और फिर उसके बाद ये 3 मुर्दा को खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा किया, और ये 5 जो मुर्दे जिंदा हुए, 2 पुराने अध्यायों में और 3 तो किसने जिंदा की है? यीशु ने। किसने जिंदा की है? यीशु ने जिंदा किए। लेकिन याद रखिए उनका जिंदा होना नामुकम्मल था, मुकम्मल नहीं था। सारपत की बेवा का बेटा फिर से मर गया, और फिर शनीनी औरत का बेटा भी फिर से मर गया, यायर की बेटी भी फिर से मर गई, और फिर उस नाइन शहर की बेवा का बेटा भी बाद में मर गया। ये सारे मुर्दे यीशु ने जितनों को जिंदा किया बाद में फिर से मर गए। लेकिन यीशु से अपने बारे में क्या कहता है कि देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब तो बाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। जितने मुर्दे जिंदा हुए सब मर गए, क्योंकि उनका जिंदा रहना ठीक नहीं था, यानी कि नामुकम्मल था, कामिल नहीं था। लेकिन यीशु मसीह मरा और फिर जिंदा हुआ, और अब तक आबाद क्या रहेगा? यीशु का तारफ। यीशु का ये क्या है? तारफ। वो इकरार करता है कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ, और कब तक जिंदा रहूंगा? यीशु ने कब तक कहा मैं जिंदा रहूंगा? यीशु का तारफ क्या है? कब तक वो जिंदा रहेगा? कब तक? अब्दुल, मैंने पहले कहा कि ये ज़माने हमारे लिए है, माजी, हाल और मुस्तकबिल, लेकिन खुदा हमेशा अबदियत में रहता है। हालेलुया। खुदा हमेशा कहाँ रहता है? अबदियत में रहता है। उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा। वो अबदियत का बाप है, वो अबदियत का बाप है। इसलिए कहता है कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ, और अब्दुल अबाद क्या रहूंगा? जिंदा। पुराने ड्रामा में, नए ड्रामा में जितने मुर्दे जिंदा किए गए
उन सबको फिर से मौत आई, लेकिन यीशु मसीह की मौत ऐसी नहीं थी। यीशु मरा और जिंदा हुआ, और फिर ये उसकी गवाही है। और फिर उसने क्या कहा, तीसरी बात वो क्या कहता है, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ, और अब बाद क्या रहूंगा, जिंदा, अब तो बाद क्या रहूंगा, जिंदा रहूंगा। और आगे लिखा है, और मैं जिंदा था और देख अब तो बाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। अब वो कौन सा तारफ करवा रहा है, अब वो तारफ करवा रहा है अपने इख्तियार का। सुनिएगा, अब वो तारफ क्या करवा रहा है, अपने इख्तियार का, कि मैं मर गया, अब जिंदा हूँ, और अब बाइख्तियार हूँ। और वो इख्तियार की चीजों पर रखता है। वो कहता है कि जिस्म और आलम अरवाह का इख्तियार मेरे पास है, यानी कि मौत और आलम अरवाह का इख्तियार किसके पास है? मौत से मुराद है हमारा बदन, मौत से मुराद है इंसानी जिस्म, हमारी बॉडी, और ये है मौत, यानी कि ये मौत के वसीला से एक दिन फना हो जाएगा, और हमारे बदन और हमारे यानी जिस्म और हमारी रूह पर इख्तियार किसका है बताइएगा? मेरे और आपके बदन और रूह पर किसका इख्तियार है? जब कोई इंसान मरता है तो हम क्या कहते हैं, किसकी मर्जी है, किसकी मर्जी है? हम कहता, अगर कोई हमारा अजीज हमसे बिछड़ जाता है, हमसे रियत कर जाता है, और फिर उसके अफसोस के लिए हम क्या कहते हैं कि किसकी मर्जी, किसकी मर्जी, यानी कि अव्वल और आखिर की मर्जी, खुदावंद खुदा की मर्जी, यीशु मसीह की मर्जी, यानी कि उसका इख्तियार है कि मौत और आलम अरवाह पर क्या है, मेरा इख्तियार है। यानी कि मौत और आलम अरवाह की कुंजियां से मुराद इख्तियार होता है, कुंजियों से मुराद, और घर की कुंजियां जिसके पास हो उसका इख्तियार होता है, उसका इख्तियार होता है। घर की कुंजियां जिस शख्स के पास हो, चाहे वो बाप है, चाहे माँ है, चाहे कोई बड़ा भाई है, चाहे कोई बड़ी बहन है, घर की कुंजियां जिसके पास हो उसके पास सारा इख्तियार। कुंजियां किसको दी जाती हैं? कुंजियां दी ही उसको जाती हैं जिसके पास इख्तियार हो कि ये ले कुंजियां, ये संदूक की कुंजियां है, ये पेटी की कुंजियां है, ये दराज की कुंजियां है, और ये वगैरह हर चीज की कुंजियां हैं। और यीशु मसीह के पास इख्तियार क्या है? उसके पास कुंजियां क्यों हैं? क्योंकि वही इख्तियार कुल है। और वो कहता है कि मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। कुंजियां जो है वो इख्तियार को जाहिर करती हैं। याद रखिए, कुंजियां जिसके पास कुंजी हो, घर की कुंजी हो, खजाने की कुंजी हो, दौलत की कुंजी हो, या किसी भी चीज की कुंजी हो, तो वो उस घर का मुख्तार होता है, वो उस घर का मालिक होता है, और उसके पास पूरा इख्तियार होता है। वो जब चाहे ताला खोल सकता है और जब चाहे ताला बंद कर सकता है। इसलिए उसने कहा मौत और आलम अरवाह की कुंजियां, मौत और आलम अरवाह की कुंजियां। मौत जो है वो बदन या जिस्म को जाहिर करती है, और आलम अरवाह जो है वो रूह को जाहिर करती है। यानी कि मेरे और आपके बदन और रूह की कुंजियां किसके पास है? किसके पास है? आप तो बोले किसके पास है? वो यूहन्ना को अपना मुख्य सा तारफ करवा रहा है कि अब कह रहा है कि मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है, क्योंकि वो बात क्या है, वो इख्तियार कुल है। इसलिए उसने आसमान पर जाने से पहले भी कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। और यीशु मसीह के पास ही आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। जमीन के नीचे वालों का इख्तियार भी उसके पास है। आसमान और आसमान से ऊपर जितने भी 3 आसमान है, हर एक आसमान का इख्तियार किसके पास है? यीशु के पास है। और वो इसमें कहता है कि मैं मौत और आलम अरवाह की कुंजियां रखता हूँ, मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है, और कोई मुझसे छीन नहीं सकता। यीशु मसीह से इख्तियार की कुंजियां कोई भी छीन नहीं सकता, हर कोई छीन नहीं सकता। क्यों नहीं छीन सकता? क्यों? क्योंकि वो मरा और जिंदा हुआ, और अब्दुल अबाद तक जिंदा रहेगा। कोई भी बनी इंसान से पैदा होने वाला, कोई भी नस्ल आदम से पैदाइश लेने वाला, उसके पास इतना इख्तियार नहीं। इख्तियार इंसान के पास कब तक होता है? कब तक? बड़े से बड़ा, लंबे से लंबा भी इख्तियार हो तो कब तक होता है? जब तक वो मरता नहीं, जब तक वो जिंदा रहता है। जब मर जाता है तो
आवाज की किताब के मुताबिक उसका कोई इख्तियार है, उसका इस दुनिया के अंदर कोई हिस्सा और बखरा नहीं रहता, क्योंकि वो मर जाता है। लेकिन यीशु मसीह के पास इख्तियार क्यों है? क्योंकि वो मरा और जिंदा हुआ और अब्दुल आबाद क्या कोई हस्ती है? अगर कोई दुनिया में ऐसी हस्ती है तो मुझे चुपके से बता दे कि दुनिया में ऐसी हस्ती है जो मरा और जिंदा होगा और अब्दुल आबाद तक जिंदा रहेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक शख्स है, एक हस्ती है, एक शख्सियत है, और वो कौन है? सभी बता रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी बता रहे, वो कौन है? कौन सी शख्सियत है? कौन सी हस्ती है? एक में मर गया था, अब जिंदा हूँ, और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मौत और अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। ये उसका इख्तियार है, ये उसका इख्तियार है। आज भी जो कुछ आसमान पर, जमीन के नीचे, फजा में, तीन आसमानों पर जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ किसके इख्तियार में है? यीशु के इख्तियार में। किसके इख्तियार में है? क्यों? क्योंकि वो इख्तियार कुल है, उसके पास सभी इख्तियार है, और ऐसा इख्तियार कोई भी उसे छीन नहीं सकता। ऐसा इख्तियार है कि कोई भी उसे छीन हरगिज़ छीन नहीं सकता, कभी छीन नहीं सकता। इसलिए उसके पास ये कुंजियां है, इसके पास ये कुंजियां है, और कुंजियां उसके मरने के, मरकर जी उठने और जी उठकर 40 दिन अपने शिगिर्दों पर ज़ाहिर होने के बाद वो आसमान पर अपने आसमानी खुदा बाप के दाहिने हाथ में बैठा, और वहाँ कर क्या रहा है? वहाँ क्या कर रहा है? इख्तियार। क्या कर रहा है? इख्तियार। और इख्तियार के साथ वो मेरे और आपके लिए घर बनवा रहा है, मेरे और आपके लिए अच्छे से अच्छा घर बनवा रहा है, खूबसूरत घर बनवा रहा है, और उस घर में हम अपनी अपनी बारी पर जाएंगे। आमीन। अपने अपने कामों के मुताबिक जाएंगे, अपनी अपनी मेहनतों के पास जाएंगे, और जितनी मेहनत हम खुदा के लिए करते हैं, जितना काम हम खुदा के लिए करते हैं, उस मेहनत और काम के सबब से हमें अच्छे से अच्छा घर मिलेगा। हालेलुया। और जो खुदा का बड़ा काम करते हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी हवेलियां होगी। याद रखिए, बाइबल को बयान करती है, उनके लिए छोटे छोटे घर नहीं होंगे। तो कितने कितने बड़े घर होंगे? बड़े घरों से मुराद क्या है? बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़ी बड़ी, जो ज्यादा खिदमत करेंगे उनके लिए ज्यादा बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी हवेलियां होंगी। और जो थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और उनके काम के मुताबिक छोटे छोटे घर, छोटे छोटे, और जो काम करते ही नहीं उनके लिए कुछ भी नहीं, उनके लिए इसलिए कि हमें खुदा का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आसमान पर खुदा की बादशाही में बड़े से बड़ा घर हासिल करना चाहते हैं तो फिर खुदा का काम भी बड़े से बड़ा करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि इख्तियार किसके पास है? इख्तियार किसके पास है? क्या कोई चीज उस पर गलबा हासिल कर पाई? मौत जिसने किसी को नहीं बख्शा। क्या किसी को बख्शा? बड़ी सी बड़ी उम्र पाने के बाद भी वक्त पर हर कोई मरता रहा और मरता रहेगा, लेकिन यीशु मसीह ने मौत पर भी गलबा हासिल किया। हालेलुया। मौत तेरा नाम कहाँ रहा? मौत तेरी फतह कहाँ रही? कोई दुनिया में ऐसा शख्स दिखा दे जिसने मौत को ललकारा हो, जिसने मौत को चैलेंज किया हो। लेकिन मैं आपको एक शख्स दिखाता हूँ जिसने मौत को चैलेंज किया, और वो कौन है? कौन है? सभी क्यों नहीं बोल रहे? जिसने मौत को चैलेंज किया, जिसने मौत पर फतह हासिल की, जिसने मौत पर गलबा हासिल किया, वो कौन है? वो कौन है? गुनाह पर भी कोई फतह हासिल नहीं कर पाया, यीशु मसीह ने गुनाह पर भी फतह हासिल की। अगर कोई है तो मुझे बता दें, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। गुनाह पर किसने फतह हासिल की? गुनाह को किसने शिकस्त दी? किसने? यीशु ने। शरीयत को उसने पता किया, उसने गुनाह को पता किया, इब्लीस को उसने शिकस्त दी, उसने कब्र को शिकस्त दी, उसने मौत को शिकस्त दी। क्यों? किस लिए? किस लिए? रोमियो के खत के चौथे बाब की 25वीं आयत इस बात को बयान करती है। जरा मेरे साथ निकालें रोमियो के नाम रसूल का खत, उसका चौथा बाब और उसकी 25वीं आयत। ये आयत इस बाब की आखिरी आयत है। रोमियो
बाब और उसकी 25वीं आयत क्या बयान करती है? शाबाश, अगर कोई निकाले तो वो जरूर पढ़ने में रहनुमाई करे। भाइयों में से या बहनों में से वो बुलंद आवाज में पढ़ सकते हैं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4वां बाब और उसकी 25वीं आयत को पढ़े। तो यहाँ पर क्या लिखा है? शाबाश, वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया। आगे, हमको रास्तबाज ठहराने के लिए हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। जिलाया गया। ठीक है बेटा, यानी कि वो क्यों मरा? हमारे गुनाहों का मसला हल करने के लिए, हमारे कसूरों का मसला हल करने के लिए, हमारी गलतियों खताओं का मसला हल करने के लिए वो मरा, ताकि मेरे और आपके गुनाहों का हल निकल जाए। वो मरा ताकि मेरे और आपके गुनाहों का मसला हल हो जाए, खताओं और कसूरों का मसला हल हो जाए। वो मरा तो मेरे और आपके गुनाहों के लिए, लेकिन वो जिंदा क्यों हुआ? क्यों वो क्यों जिलाया गया? क्यों जिंदा किया गया? क्यों जिंदा हुआ? क्यों तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया गया? क्यों? ताकि मुझे और आपको रास्तबाज बनाने के लिए। हालेलुया। जो काम शरीयत ना कर पाई, जो काम अंबिया इकराम ना कर पाए, जो काम अंबिया अकबर और अंबिया असगर ना कर पाए, वो यीशु मसीह ने सलीब पर जान देने के सबब से मेरे और आपके गुनाहों का कफारा किया और इस तरह से मसले को हल किया। और फिर जिंदा इसलिए किया गया ताकि हम रास्तबाज बन जाए। हालेलुया। रास्तबाज बनने से मुराद क्या है? कि जिस तरह वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, हम भी मुर्दों में से जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। और जब यीशु आएगा, और वो तहम्मुल करके इसलिए ठहरा हुआ है, इसलिए वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है कि जो अभी तक गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं, क्योंकि उसने तो हमें गुनाहों से निकाल दिया। इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं कि वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला किया गया। मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसने सलीब पर अपनी जान का फिदिया दिया, अपने पाक लहू का कफारा दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। क्यों हवाले कर दिया? मेरे और आपके गुनाहों के लिए। इस बात को याद रखें कि वो जिंदा क्यों किया गया? ताकि हमें रास्तबाज बनाए। और जो उसे कबूल कर लेता है, उसकी मसलूबियत को, उसके कफारे को, उसके दिए फिदिये को मान लेता है, वो गुनाह से निकलकर रास्तबाजी की जिंदगी बसर कर देता है। हालेलुया। और फिर जो इख्तियार यीशु के पास है, उस इख्तियार में वो भी शामिल हो जाता है, क्योंकि वो उसकी बादशाही का वारिस होता है, उसकी बादशाही का वारिस होता है। क्यों? क्यों? पतरस ने क्या कहा? पतरस ने यीशु से कहा कि हमने तेरे पीछे अपने बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार सब कुछ छोड़ दिया है, हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? वो दुनियादारी के बारे में सोच रहा था कि शायद हमें बड़ा सा घर मिल जाए, हमें बड़ी जायदाद मिल जाए, हमें कोई बैंक बैलेंस मिल जाए, हमें कोई बहुत बड़े बड़े रुपए पैसे मिल जाए। लेकिन यीशु ने उसे क्या कहा? यीशु ने कहा, पतरस ठीक है, तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत बड़े इनाम से नवाजूंगा। और वो इनाम क्या होगा? कि तुम मेरे साथ तख्त पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का हालेलुया और जो कुछ यीशु का है वो सब कुछ हमारा है। और जहाँ यीशु होगा हम भी वहाँ होंगे, हम भी बंद। उसके जीतने के से मुराद ये है, रास्तबाज ठहराने से मुराद ये है कि जो कुछ यीशु का है वो हमारा है, और आसमान की बादशाही उसकी है और हमारी है। और ये बड़ी बड़ी फील्ड्स आपको नजर आती हैं, इनसे हमें कोई मुफाद नहीं। ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, ये पुनः हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। देखिए जरा सा भूचाल आए तो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो गिर जाती है कि नहीं गिरती? बड़ी मजबूती से बनाई होती है, उन्होंने बड़ा मटेरियल जबरदस्त तरीके से लगाया होता है, बड़ा लाखों करोड़ों रुपया उन पर लगाया होता है। लेकिन जो ही जरा सा झटका लगता है भूचाल का, तो फिर क्या होती है? जमीन ठोस हो जाती है, जमीन के अंदर खाड़ी जाती है, चली जाती है, गिर पड़ती है, तबाह बर्बाद हो जाती है। लेकिन याद रखिए हमारी विरासत में ऐसा ना होगा। हालेलुया। मेरी और आपकी विरासत में ऐसा वहाँ कोई सलसला नहीं आएगा, वहाँ कोई भूचाल नहीं आएगा। सिर्फ ये इस जमीन पर दुनिया के अंदर है, लेकिन मेरी और आपकी बादशाही आसमान की बादशाही है।
और इसी तारफ को जो है वो यूहन्ना के साथ या यूहन्ना के सामने यीशु मसीह बयान करता हुआ दिखाई देता है। उसके तारफ कौन कौन, एक बार मैं और फिर रिपीट कर देता हूँ। उसका तारफ, पहला तारफ क्या है? मैं अव्वल और आखिर। इसका मतलब क्या है? यही लक़ब वो पुराने अहदनामा में खुदा के बारे में है, और वो यहाँ पर वो अपने आप को क्या पेश करता दिखाई देता है? खुदा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है, इसलिए वो तारीफ करवाता है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ। और फिर वो क्या तारीफ करवाता है? देख मैं क्या था और अब और तीसरा तारीफ क्या है? और अब तो बाद जिंदा रहूंगा। और चौथा तारीफ क्या है? कि मौत और आलमे और आखिरी कुंजियां मेरे पास है, और कोई भी यीशु मसीह से इस इख्तियार को छीन नहीं सकता, क्योंकि यीशु ही तो सबको इख्तियार देने की कुदरत रखता है। वो इख्तियार कुल है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। इसलिए वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए हवाला किया गया ताकि हमारे गुनाहों को माफ कर दे, और वो जिंदा इसलिए हुआ ताकि हमें रास्तबाज बनाए। आइए, जो अभी तक गुनाह की दलदल में जिंदगी बसर कर रहे हैं, गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं, वो रास्तबाजी को जांचें, रास्तबाजी को अपना लें, रास्तबाजी को कबूल कर लें। किस लिए? यीशु मसीह के जी उठने को समझ आए, यीशु मसीह के जी उठने को कबूल कर ले, यीशु मसीह के जी उठने पर ईमान ले आए, तो फिर रास्तबाजी को हासिल करेगा। खुदा इस कलाम की बरकत आप सबको